यदि आप चाहते हैं कि आप तक हमारे एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस तुरंत पहुंचते रहें, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर और लाइक करते रहें। मैं डॉक्टर महेश कौशिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मनी मल्टीप्लायर एंड मनी क्रिएशन, लेकर आपके साथ। और सबसे पहले मनी क्रिएशन को जानने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मनी क्रिएशन। एंड फर्स्ट पॉइंट इज डिमांड डिपॉजिट्स, जिसको हिंदी में मांग जमाएं कहते हैं. So we will have to know that what are the demand deposits. So the deposits which can be withdrawn at any time with the help of the checks, means you can withdraw your deposits from the bank by issuing the check, are called demand deposits. So these are called checkable deposits also. For example, if you keep your savings in saving bank account or current account, so the amount which is kept in these accounts can be withdrawn with the help of checks anytime. So these are called demand deposits. But if you keep your money in time deposit account or term deposit account, or which is known as fixed deposit account, where we deposit our money or savings for a specific period of time, for example for 2 years, for 3 years. So before completion of the certain time period, we cannot withdraw the amount from the bank by issuing checks. So the amount kept in fixed deposit account is not considered in demand deposits. जो भी हम अपना जमाए रखते हैं किसमें, सेविंग मतलब यानी बचत खाते में और चालू जमा खाते में, उन्हें कभी भी चेक के द्वारा निकलवा सकते हैं, इसलिए उनको मांग जमाए कहते हैं. लेकिन जैसे कि सावधि जमा खाता होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, उसमें रखी हुई जमाओं को हम चेक की सहायता से नहीं निकलवा सकते, इसलिए उनको मांग जमाए नहीं माना जाता है. इसके अंतर्गत दो चीज़ें समझने वाली हैं, एक प्राइमरी और कैश डिपॉजिट्स, जो हमने अपने खातों में जमा किया है, अपना कैश, अपनी बचतें, वो सब प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं. Amount deposited in saving or current accounts by the public, okay, initially are called primary or cash deposits, and bank do not play any role in these primary deposits. Actually, these deposits depend on the banking habits of the people. If people are habitual of purchasing goods through cash, then these deposits will be less, and vice versa. यदि लोग चाहते हैं कि नगद के द्वारा ही लेन देन करें, तो वो अपने बैंक खातों में जमाओं को कम रखेंगे, जिससे कि ये प्राइमरी डिपॉजिट्स कम हो जाएंगे. दूसरे हैं हमारे डेरिवेटिव और सेकेंडरी डिपॉजिट्स. यहां से बैंक का रोल शुरू होता है, एंड बैंक क्रिएट्स दीज डेरिवेटिव और सेकेंडरी डिपॉजिट्स, एंड क्रिएटिंग दीज सेकेंडरी डिपॉजिट्स इज द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, जिसमें बैंक इन प्राइमरी डिपॉजिट्स के बेस पर जो लोन एक्सटेंड करते हैं, और जितना ज़्यादा वो लोन एक्सटेंड करते हैं उतने ही ये सेकेंडरी डिपॉजिट्स बढ़ते चले जाते हैं. लेकिन वो कितना सेकेंडरी डिपॉजिट्स बना सकते हैं, कितना क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द मनी मल्टीप्लायर एंड द प्राइमरी डिपॉजिट्स. टू थिंग्स आर देयर. वन इज प्राइमरी डिपॉजिट्स, कि वो कितने हैं प्राथमिक जमाएं, और दूसरा मनी मल्टीप्लायर. प्राइमरी डिपॉजिट्स हमने बताया वो पब्लिक के ऊपर है कि वो कितना पैसा अपने खातों में रखती है. हाउ डू वी कैलकुलेट मनी मल्टीप्लायर? The formula is 1 upon reserve ratio. Reserve ratio means every commercial bank has to maintain some reserves out of its primary deposits. For example, if suppose 1 crore rupees are the primary deposits for a bank and 10% is the reserve ratio, it simply means that 10% of 1 crore means 10 lakhs rupees the bank will have to maintain as reserves. So if the reserve ratio is 10%, then 1 upon reserve ratio means 1 upon 10%, 10 upon 100 means 0.1, 1 upon 0.1 is equal to 10. The value of money multiplier will be 10. If this reserve ratio increases, for example, if we increase the reserve ratio up to 20%, then 1 upon 20% means 1 upon 0.2, then the value of money multiplier will be 1 upon 0.2 is equal to 5. So as the reserve ratio increases, the value of money multiplier decreases. So there is inverse relationship. But how do commercial banks create credit?
So it can be understood with the following table. If suppose 1000, you can see the different columns. In second column deposits, you can see that 1000 are the primary deposits. We are assuming, हम मानकर चल रहे हैं कि 1000 रुपीज किसी के पास बैंक के पास डिपॉजिट्स हुए हैं, लोगों ने जमा कराए हैं. And 10% we are again assuming the reserve ratio, that is 10%. So if 10% is the reserve ratio, then 10% of 1000 means 100 rupees will become reserves, required reserves for the bank, and remaining 900 will be given as loan to the people. But this loan amount will not be given cash to the people, to the customers. This 900 rupees will be transferred to their account. And when these 900 rupees will be transferred to their account, it will become the deposits for the bank. जैसे ही 900 रुपए ये लोन के रूप में दिए जाएंगे तो नगद रूप में नहीं दिए जाएंगे, बल्कि उनके खातों में डाल दिए जाएंगे. जैसे ही खातों में डाले जाएंगे, ये बैंक के लिए 900 रुपए फिर से जमाए बन जाएगा. मीन्स 900 will become deposits for the bank. And when the 900 will become deposits for the bank, then now again the bank will deduct 10% reserves out of this 900, which is 90, and remaining 810 will be given loan to the other people from the same process, means by transferring this amount in their accounts. Again, when this amount will be transferred to their account, this amount will become deposit for the bank, and again bank will deduct RR, means 10%, that is 81 rupees, and remaining 729 rupees will be sanctioned, will be given to the loan to other people from the same process. So this process continues. यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, हर बार 10% काट करके बाकी अमाउंट लोन देने की और खातों में डालने की, और खातों में जैसे ही डाला जाएगा फिर से जमाए बनेगा, फिर से 10% काटा जाएगा. इस प्रकार से प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि लोन देने के लिए जो अमाउंट है वो जीरो यानी शून्य नहीं हो जाता, until this amount becomes zero. इसी को आगे आप समझें कि टोटल रिजर्व्स आप देखें तो सबसे पहले टोटल डिपॉजिट, सबसे पहले आपके पास 1000 रुपीज आए, जो कि आप देख सकते हैं सेकंड लास्ट कॉलम में. उसमें से 10% हमने रिजर्व्स रखे जो कि 100 रुपीज हो गए उससे पहले वाले कॉलम में आप देखें, और लास्ट कॉलम में आप देखें कि रिमेनिंग 900 हमने लोन दे दिया. तो अब यहां पर हमारे पास टोटल डिपॉजिट्स हो गए 1900. अब ये जो 900 था इसका भी हमने 10% डिडक्ट किया था, यानी कि 90 रुपीज, तो वो रिजर्व्स बन गए. तो पहले हमारे रिजर्व्स थे 100, अब 90 और ऐड हो गए, तो टोटल रिजर्व्स अब हमारे हो गए 190, और जो रिमेनिंग अमाउंट रहा 810 वो हमने लोन दे दिया. इसलिए अब टोटल लोन्स जो पहले 900 थे इस 810 के प्लस होने से वो हो गया 1710. इस तरह से ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है. तो टोटल लोन्स जो बैंक क्रिएट करेगा वो 9000 है, और जो टोटल डिपॉजिट्स उसके पास हो गए 9000 ये लोन्स के थ्रू जो डिपॉजिट्स बने हैं, और 1000 उसके पास प्राइमरी डिपॉजिट्स थे. तो टोटल डिपॉजिट्स उसके पास 10000 हो गए, और टोटल रिजर्व्स उसके पास 1000 है. ये 1000 वही अमाउंट है जो उसके पास प्राइमरी डिपॉजिट्स में आया था. अब ये पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया रिजर्व्स में. तो रिजर्व्स प्लस टोटल लोन अमाउंट मींस 1000 प्लस 9000 इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट्स विच इज 10000. तो ये जो 9000 टोटल लोन्स जो क्रिएट किए हैं यही एक्चुअल में क्रेडिट क्रिएशन है, जिसको हम एक्टिव क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं. और ये 9000 ही डेरिवेटिव है, या जिसको हमने शुरू में ही आपको जो प्राइमरी डिपॉजिट्स के बाद सेकंड टर्म बताई थी सेकेंडरी डिपॉजिट्स, ये वास्तव में वही अमाउंट है कि जो आपका 9000 सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं. अब बैंक इसको शो कैसे करता है? बैंक इसको शो ऐसे करता है कि मान लीजिए बैंक के पास अभी हम मानते हैं 100 रुपीज आए या $100 आए, तो $100 अगर बैंक के पास आए डिपॉजिट के रूप में, तो वो इसमें से 10% डिडक्ट करेगा रिजर्व मेंटेन करने के लिए, रिक्वायर्ड रिजर्व बनाने के लिए, यानी $10, और रिमेनिंग $90 को वो लोन दे देगा. इस प्रकार से जो उसके पास डिपॉजिट्स आए थे, लोगों ने अपना जो जमा किया था वो उसकी लायबिलिटी था बैंक की चुकाना, इसलिए $100 की लायबिलिटी थी, जिसमें से उसने 10 अपने पास कैश में रख लिया और 90 के डेटर्स क्रिएट कर दिए बाई गिविंग लोन्स. तो उसके पास ये लोन्स जो हैं और रिक्वायर्ड रिजर्व्स दोनों मिलकर 100 हुआ. इस तरह से टोटल एसेट्स $100 और टोटल लायबिलिटीज भी $100 की रहेंगी. तो कैश एट हैंड जो था वो बैंक के पास 1000 था, और उसने जो टोटल लोन्स क्रिएट किए पूरी प्रोसेस से, क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस से, वो 9000 के लोन्स क्रिएट किए. तो टोटल जो उसकी एसेट्स हो गई वो 10000 हो गई, और जो उसके पास लायबिलिटीज हैं, चूंकि उसने जो अलग अलग लोगों का अपने पास रखा है
जो डिपॉजिट्स, जो लोन अमाउंट डिपॉजिट बनता चला गया वो भी सब मिलाकर के 9,000 था, और प्राइमरी डिपॉजिट्स उसके पास थे ही 1,000 के जो उसे देने थे। तो टोटल लाइबिलिटी 10,000 की है और टोटल एसेट्स भी 10,000 है। हम जानते हैं, अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो जानते हैं हम कि दोनों बैलेंस शीट के दोनों पार्ट यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों का टोटल इक्वल रहता है। हम सब जानते हैं कि आजकल सब जो है वो सिस्टम मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम है, बहुत सारे बैंक एक साथ काम करते हैं इकोनॉमी में। तो मान लीजिए किसी का अकाउंट ए बैंक में है, वह तो वहां से जितना लोन लेता है, लेकिन वह जिनको पेमेंट करता है जरूरी नहीं कि उनका अकाउंट उसी ए बैंक में हो, उनका हो सकता है बी में हो, किसी का सी में हो। तो इससे क्या होगा कि ए बैंक से आपने मान लीजिए 50 लाख रुपीस का लोन लिया, आपने उसमें से 20 लाख रुपीस अपने कॉन्ट्रैक्टर को पे किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का अकाउंट आपके बैंक में नहीं है, उसका किसी बी बैंक में अकाउंट है। तो वो 20 लाख रुपीस का चेक अपने अकाउंट में जमा करेगा बी बैंक में, और वहां पर अब ए बैंक को 20 लाख रुपए बी बैंक को ट्रांसफर करने होंगे। अब इससे बी बैंक के पास वो 20 लाख रुपए के प्राइमरी डिपॉजिट्स आ जाएंगे, और इतने 20 लाख से जो डिपॉजिट्स हैं वो ए बैंक के कम हो गए। तो ए बैंक के 20 लाख से डिपॉजिट कम हुए लेकिन बी बैंक के बढ़ गए। तो पूरे अगर बैंकिंग सिस्टम को देखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो काम ए बैंक करने वाला था अब वो ए और बी मिलकर करेंगे। ऐसे मान लीजिए कोई सी बैंक है तो वो सिस्टम में सी बैंक एंटर करने से अब जो काम ए और बी करने वाले थे वो ए बी सी मिलकर करेंगे, लेकिन टोटल मनी क्रिएशन उतना ही होगा। एक बैंक की मनी क्रिएशन एबिलिटी अगर कम होगी तो दूसरे की बढ़ जाएगी। इस तरह से ये पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम काम करता है मनी क्रिएशन को लेकर के। ये मनी क्रिएशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम में आता है 2-3 तरीके से आ सकता है कि एक्सप्लेन द मनी क्रिएशन प्रोसेस, हाउ डू बैंक क्रिएट क्रेडिट, इस तरह से भी आ सकता है बैंक किस प्रकार से साख सृजन करते हैं, साख सृजन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, समझाइए बैंक साख सृजन कैसे करते हैं। या कभी कभी थोड़ा सा लिमिटेशन के साथ जोड़कर आता है इस तरह से, एक्सप्लेन द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ द बैंक्स एंड बैंक्स डू नॉट क्रिएट क्रेडिट इन द एयर। एक्सप्लेन, बैंक्स डू नॉट क्रिएट क्रेडिट इन द एयर, इसका मतलब है बैंक हवा में साख का सृजन नहीं करते हैं। ये बैंक की एक्चुअली साख सृजन की सीमा को बताता है। सीमा जैसे कि प्राइमरी डिपॉजिट्स अपने आप में सीमा है। अब प्राइमरी डिपॉजिट्स मान लीजिए 1 करोड़ हैं और आपका मल्टीप्लायर की वैल्यू 10 है तो आप 10 करोड़ का टोटल डिपॉजिट क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए प्राइमरी डिपॉजिट्स आपके 2 करोड़ हो जाए तो 2 करोड़ इंटू 10 तो 20 करोड़ का क्रेडिट क्रिएशन होगा। तो जितना प्राइमरी डिपॉजिट्स ज्यादा होंगे उतना क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। ऑन द सेम वे मनी मल्टीप्लायर जो कि रिजर्व रेशो पर डिपेंड करता है, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी क्रेडिट क्रिएशन उतना ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। तो इस तरह से जुड़ करके भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपको इन बैंकों की बैलेंस शीट दिखानी होगी, आपको मनी क्रिएशन का प्रोसेस जो शेड्यूल जो हमने दिखाया है उसके थ्रू दिखाना होगा, इसको एक्सप्लेन करना होगा और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला देकर उसमें बताना होगा किस तरह से मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है रिजर्व रेशो के थ्रू, और टोटल मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट्स इनटू मनी मल्टीप्लायर, ये फॉर्मूला आपको उसके अंदर देना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको हमें लगता है कि इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ सजेशन हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इन सजेशंस को ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को ज़रूर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।